हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी मॉडल पेपर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन यूज फॉर एसजीपीजीआई, सीपीपी नेट, केजीएमयू एंड रेयर कंडीशन एम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड नए स्टूडेंट जितने भी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर वीडियो। इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए है हास्टिनसन, बी ऑप्शन एंगलर, सी ऑप्शन लिनियस, डी ऑप्शन थ्रियोफ्रेस्टस। करेक्ट ऑप्शन इज द सी, लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स that is based on a few numbers of characters is referred to as. ऑप्शन नंबर ए नेचुरल सिस्टम, बी ऑप्शन इज द आर्टिफिशियल सिस्टम, सी ऑप्शन इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम, डी ऑप्शन इज द जेनेटिक सिस्टम। So correct option is the B, artificial systems. Next question, question number 3. The species inhabiting the same geographical areas are. Option number A sibling, option number B sympatric, option number C allopatric, option number D taxonomic. Answer is C, B, sympatric. Okay. Option number 4, binomial nomenclature refers to. Option number A, one Latin name and one vernacular name. Option number B, one scientific name and one Latin name. Option number C, one scientific name and one vernacular name. Option number D, one generic name and one specific name. So correct answer is the D, one generic name and one specific name. Binomial nomenclature refers one generic name and one specific name. Right? Next question, question number 5. Phylogeny refers to. Phylogeny refers to. Option number A group of phyla. Option number B, life history of plants. Option number C, genetic of animals. Option number D, evolutionary history of a species from their ancestors. So right option is the D, evolutionary history of species from their ancestors. Question number 6. Which of the phyla has the highest number of species? Option number A, Arthropoda. Option number B, Annelida. Option number C, Mollusca. Option number D, Echinodermata. करेक्ट ऑप्शन आप लोग साथ साथ में चैट बॉक्स में गिवन करिए। ऑप्शन नंबर A is the right answer. Arthropoda is the highest number of species phyla. Okay, agree? Next, question number 7. Cyanobacteria refers to. All question is the previous year paper questions. Okay, इस सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स विथ कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग द साइनोफाइसियन एल्गी। ऑप्शन नंबर सी वायरसेस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर डी साइनोफाइसियन मेंबर्स इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज द
Write down chat box. Correct option is the A. Autotrophic prokaryote with characteristic blue-green pigments. Okay, done. Next question is the Mertensia is a bryophyte since it does not have. Mertensia is a bryophyte since it does not have. इसके पास क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए वास्कुलर टिश्यू, बी ऑप्शन इज द रूट्स, सी ऑप्शन इज द इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट सीड्स, ऑप्शन नंबर डी है सीड्स. करेक्ट ऑप्शन इज द डी seeds. Any doubt for questions? Please comment me. Next question, question number 9. The fern leaves are known as. Option number A is the blades, B option is the sporophyll, C option lamina, D option is the fronds. What is the correct option? Correct option is the D, fronds. ओके ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना. ओके एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, आप सभी को ये लर्न रखेंगे. क्योंकि ऑप्शन नंबर 10 है यंग लीव ऑफ साइकस सो. ऑप्शन नंबर ए है सिंपल वेनेसन, बी ऑप्शन है सर्सिनेट वेनेसन, सी ऑप्शन है अल्टरनेट अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर डी अपोजिट अरेंजमेंट. साइकस का यंग लीफ क्या शो करता है, कौन सा वेनेसन शो करता है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, सर्सिनेट वेनेसन शो करता है. ओके लर्न रखेंगे इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. द सीड ऑफ पाइनस इज. ऑप्शन नंबर ए कवर्ड एंड नॉन इंडोस्पर्मिक, ऑप्शन बी नेकेड एंड नॉन इंडोस्पर्मिक, ऑप्शन नंबर सी है एबैक्सियली प्लेस्ड एंड कवर्ड, ऑप्शन नंबर डी है एडैक्सियली प्लेस्ड नेक्ड एंड इंडोस्पर्मिक. correct option is the correct option is the D axially placed necked and endospermic. पाइनस सीड कैसा होता है? axially placed necked and endospermic. ओके लर्न रहेगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12. द पेटियोल मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज. पेटियोल मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज. पेटियोल जब मॉडिफाइड होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, यानी लीफ में जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जब कन्वर्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फाइलोक्लेड, ऑप्शन बी फाइलोड, ऑप्शन नंबर सी क्लेडोड, डी ऑप्शन है क्लेडोफिल. करेक्टली मैच कौन करना है ऑप्शन? सो करेक्टली आंसर इज फाइलोड. ओके ये सारे क्वेश्चन एम्स लेवल के क्वेश्चन है. ओके एंड KGMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है, KGMU काफ़ी टॉप कॉलेज है. ओके इंडिया का टॉप 10 कॉलेज है, टॉप 10 कॉलेज में आता है इंडिया के. सो वहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन ही रहेंगे. ओके सिंपल क्वेश्चन इसमें नहीं आने, जैसा कि ABVMU में आया था ऐसा क्वेश्चन इसमें आने वाला नहीं है. तो आप सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, स्कूटेलम इज द फर्स्ट लीफ ऑफ. स्कूटेलम इज द फर्स्ट लीफ ऑफ. ऑप्शन नंबर ए है जिम्नोस्पर्म्स, बी है मोनोकॉट्स, सी है डाइकॉट्स, डी ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स. करेक्ट ऑप्शन आप लोग पहले फटाफट गिवन करिए चैट बॉक्स में. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट मोनोकॉट्स. ओके
स्कोटेलम इज द फर्स्ट लीफ ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स का फर्स्ट लीफ किसका होता है? मतलब स्कोटेलम होता है। ओके, मोनोकॉट्स का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ऑप्शन नंबर ए जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर सी है मेच्योर सीड सेल्स, डी ऑप्शन क्या है कंपेनियन सेल्स। आंसर इज द सी, मेच्योर सीड सेल्स। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द डेड सेल्स दैट हैव ए मैकेनिकल फंक्शन आर कॉल्ड। डेड सेल दैट हैव ए मैकेनिकल फंक्शन आर कॉल्ड। डेड सेल्स में मैकेनिकल फंक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन नंबर ए है पैरेन्काइमा, बी ऑप्शन है कोलेनकाइमा, सी ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा एंड डी ऑप्शन है कंपेनियन सेल्स। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी भी है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। आंसर इज द सी, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, डेड सेल्स कौन होते हैं ये आपको पहले लर्न रखा होगा। डेड सेल कौन होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। ओके, डन। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं, फुल एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ। ओके, 16 क्वेश्चन का, द वाटर पोटेंशियल इंक्रीज ड्यू टू। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए एडिशन ऑफ सोलूट्स, बी ऑप्शन है प्रेशर, सी ऑप्शन है इवेपोरेशन एंड डी ऑप्शन है अफोरेस्टेशन। करेक्टली मैच कौन कर रहा है? ऑप्शन फटाफट आप लोग गिवन करिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज द बी, प्रेशर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following elements in is required for photolysis of water? Which of the following elements is required for photolysis of water? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन इधर कैल्शियम, डी ऑप्शन इधर जिंक। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, मैग्नीज। ओके, लर्न रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर क्या है? द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इन एंजियोस्पर्म्स अकर इन द फॉर्म ऑफ। ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इज इन एंजियोस्पर्म, ओके, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में अकर करता है? मतलब किस फॉर्म में रहता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है सुक्रोज एंड डी ऑप्शन लैक्टोज। करेक्ट ऑप्शन इज द सी, सुक्रोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच एलिमेंट इज इसेंशियल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, बी ऑप्शन आयरन, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है कैल्शियम। करेक्ट ऑप्शन इज द बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द प्लांट्स बेंड टुवर्ड लाइट बिकॉज। द प्लांट्स बेंड टुवर्ड लाइट बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए द रूट सेंड द मैसेज टू द स्टेम टू डू सो। ऑप्शन नंबर बी है द स्टेम लाइक सनलाइट। ऑप्शन नंबर सी है द फूड मटेरियल इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीव्स टू स्टेम causing bending. Option number D, due to the secretion of growth promoting substances at the tip. आंसर कौन सा होगा फटाफट आप लोग बताइए। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का मतलब है, बोल रहा है कि प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट के, प्लांट्स मुड़ क्यों जाता है लाइट की तरफ? ओके, रीजन क्या है?
ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस एट द टिप। ओके, लर्न रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पोलैंड किट हेल्प्स इन द, पोलैंड किट हेल्प्स इन द, पोलैंड किट कैसे हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिशन ऑफ पोलन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिशन ऑफ इंसेक्ट्स, सी ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ पोलन, ऑप्शन नंबर डी है स्टिकिंग टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। इसको आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आंसर इज द डी, स्टिकिंग टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम इन ए डेवलपिंग एंथर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम इन द डेवलपिंग एंथर? एंथर के डेवलपिंग में टेपिटम का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है? ऑप्शन नंबर ए टू ऑब्टेन फूड मटेरियल फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर बी टू डाइजेस्ट द माइक्रोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर सी टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरोसाइट, ऑप्शन नंबर डी टू गिव प्रोटेक्शन टू द इनर टिश्यूज। आंसर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आंसर इज द सी, टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स। ओके, फंक्शन क्या होता है टेप्टम का? प्रोवाइड फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोरोसाइट को डेवलप करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, in a plant growing under the dark condition the leaves turn light colored, internodes become much elongated and it is termed as, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर बी वेनेलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है इसोलेशन, ऑप्शन नंबर डी है फाइलोटैक्सी। इसका करेक्ट ऑप्शन चलिए मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, इसोलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है द टर्म होमोस्टेटिस इन एन इकोसिस्टम रिफर टू, होमोस्टेटिस, टर्म होमोस्टेटिस इन एन इकोसिस्टम रिफर्स टू। ओके, ऑप्शन नंबर ए है फीडबैक मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी है सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी है इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। करेक्ट ऑप्शन इज द, ओके, इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में गिवन करिए एंड एंड इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ओके, आंसर इसका नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किसको। 25 क्वेश्चन देखिए, द प्लांट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट द, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट टॉपिक लेवल, बी ऑप्शन है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड क्या है, सी ऑप्शन क्या है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, एंड डी क्या है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इसका राइट आंसर जो होगा, आंसर इज द ए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का होता है। ओके, प्लांट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इस वीडियो में मैं टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, बायो रिफर्स टू, ऑप्शन नंबर ए दैट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स atmosphere which inhabits living organisms, option number b a community of organisms interacting with one another, option number c the flora on land, d option the flora in an ocean। answer is the a, that part of the earth and its atmosphere which inhabits living organism। okay, next question, question number 27, maximum energy amongst ecosystem is contributed by, ऑप्शन नंबर ए क्रॉप्स, बी ऑप्शन फॉरेस्ट, सी ऑप्शन कोरल, डी ऑप्शन फ्यूल गैस। करेक्ट ऑप्शन इज द सी कोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को और किस नाम से
जानते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए मॉलिक्यूलर मार्कर्स, बी ऑप्शन मॉलिक्यूलर सीजर्स, सी ऑप्शन है वेक्टर्स, डी ऑप्शन है कैरियर्स। जीन क्लोनिंग में आपने पढ़ रखा है इसको, इसका आंसर बताइए। आंसर नंबर इज द बी इज द करेक्ट होगा। उसका मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पॉलीमर मरेज चेन रिएक्शन एम्प्लॉयज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लॉय करता है। ऑप्शन नंबर है प्राइमर्स एंड डीएनए लाइगेज, बी ऑप्शन प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज, सी ऑप्शन डीएनए पॉलीमरेज ओनली, डी ऑप्शन डीएनए लाइगेज ओनली। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन बताइए फटाफट आप लोग। पीएमसी रिएक्शन यानी क्या करता है? पीसीआर बोलते हैं इसको, क्या एम्प्लॉय करता है? इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। ओके, प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज। ओके, लर्न रखेंगे इसको। 30 क्वेश्चन देखिए, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड एज, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ रखा होगा, एंड पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो फटाफट देख लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे देखिए, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड एज। ऑप्शन नंबर ए है CRY, एंड बी ऑप्शन है BTY, सी ऑप्शन है TBY, डी ऑप्शन है DTY। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बीटी टॉक्सिन किसको, किस जीन से कोड करते हैं इसको? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, इसमें से कौन सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज द गैस्ट्रिन, बी ऑप्शन सिक्रेटिन, सी ऑप्शन है कोलेसिस्टोकाइनिन, डी ऑप्शन है कार्टिसोल। आंसर इज द ए गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट, सभी एंजाइम प्रोटीन के अलावा क्या स्टेप एक्सेप्ट करते हैं? मतलब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट। के ऑप्शन नंबर ए राइबोजाइम्स, बी ऑप्शन है काइनेज, सी ऑप्शन है डिहाइड्रोजिनेज, डी ऑप्शन है ट्रांसेमिनेज। ओके, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज द ए राइबोजाइम्स। ओके, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एंजाइम दैट catalyze the removal of group from substances by a mechanism other than hydrolysis leaving double bonds is called। ऑप्शन नंबर ए इज द ऑक्सीडो reductase, बी ऑप्शन है ट्रांसफरेज, सी ऑप्शन लाइजेज, एंड डी ऑप्शन है लाइगेजेज। करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन इज द सी, लाइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, Klinefelter syndrome has a sex chromosome complement of। ऑप्शन नंबर ए इज द XY, बी ऑप्शन XYY, सी ऑप्शन XXY, एंड डी ऑप्शन XO। करेक्ट ऑप्शन द CXXY। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, in which region of the interphase chromosome does transcription takes place? ऑप्शन नंबर है हेट्रोक्रोमैटिन, बी ऑप्शन यूक्रोमैटिन, सी ऑप्शन द टीलोमियर, डी ऑप्शन द सेंट्रोमियर। करेक्ट ऑप्शन इज द बी, यूक्रोमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोजेस्टेरॉन इज secreted by।
प्रोजेस्टेरॉन किससे सीक्रेट होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफिन फॉलिकल्स, बी ऑप्शन कार्पस ल्यूटियम, सी ऑप्शन इंटरस्टिशियल सेल्स, डी ऑप्शन कार्पस एल्बिकेंस। करेक्ट ऑप्शन इज द बी, कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव टिश्यू? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन्स, बी ऑप्शन नेफ्रॉन्स, सी ऑप्शन ब्लड, डी ऑप्शन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। करेक्ट आंसर इज द ब्लड, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली रिपीटेटिव डीएनए? ऑप्शन नंबर ए एलो एलिमेंट, बी ऑप्शन हिस्टोन जीन क्लस्टर, सी ऑप्शन डीएनए मिली स्टेलाइट, डी ऑप्शन है डिस्पर्स रिपीटेटिव डीएनए। आंसर इज सी, डीएनए मिनी सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सहेली एंड ओरल contraceptive for females was developed by? ऑप्शन नंबर एम्स दिल्ली, बी ऑप्शन है IICB कोलकाता, सी ऑप्शन है CDRI लखनऊ, डी ऑप्शन है ASG PGI लखनऊ। करेक्ट ऑप्शन इज द सी, CDRI लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन, a pair of male genital pores in earthworm is present on the ventrolateral sides of the, ऑप्शन नंबर ए है 14 सेगमेंट, बी ऑप्शन है 18 सेगमेंट, सी ऑप्शन है 10 सेगमेंट, डी ऑप्शन है 15 सेगमेंट। आंसर इसका कौन सा होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अर्थवर्म से क्वेश्चन है, अर्थवर्म के ऊपर क्वेश्चन है। आंसर इज द बी, 18 सेगमेंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कराऊंगी। एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ओके, तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। एंड प्रैक्टिस करिए, मोर देन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, माय एक्सपीरियंस मोर देन मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। ओके, एंड रिवीजन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।